सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं उनका एक जनरल नेम होता है एंड दैट इज थर्मोमीटर. So we will be discussing all types of thermometers over here, which are in our syllabus. तो temperature जो हमारा chapter है, it is having a paper share of around 4 marks in paper 1. Paper 2 में इसका share है 8 marks. It like turns out to be really important in paper 4. तो अगर पेपर 4 में इसका कोई क्वेश्चन आता है, then it is for at least 8 to 10 marks. तो अब शुरू करते हैं टेम्परेचर से. The first thing over here is that temperature is measured in Kelvin or degrees Celsius, as we already know. The next thing is that all the instruments which are measuring temperatures have a general name to them. उनका एक general नाम होता है and that is thermometer. तो ऐसे ही आप यूं समझें, like if we are talking about humans, तो whether be it an Asian, an American or African, he could be like from any place, he could have any sort of properties, any sort of color, caste, creed, but he would have a normal dignifying term, and that defining term is human being. Human being आपने कह दिया तो अब सब उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही थर्मोमीटर्स के साथ है. आप अगर थर्मोमीटर कह देते हैं, that means you are talking about a temperature measuring device, whether be it of liquid, thermometer, thermocouple, thermometer or resistive thermometer. So the general term is thermometer. Now coming to thermometers, हमने thermometer में 3 types होती हैं, ये पढ़नी है. The first two are from liquid, जिसमें एक है mercury और दूसरा है alcohol. So the first two are over here in the form of liquid thermometer. The third one is basically thermocouple thermometer. तो ये भी हमने पढ़ना है. एक टाइप और होती है which is resistive thermometer, which is not part of our syllabus. So we are not going into the detail of resistive thermometer. इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है हमारे सिलेबस में, वो हमने जरूर कवर करना है, but we won't going into the detail of resistive thermometer. तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अगर थर्मोमीटर्स की बात करें तो थर्मोमीटर्स में आपके पास 2 जनरल यूजेस हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से. द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल, द सेकंड वन इज लेबोरेटरी. तो हम यूजेस की बेसिस पे लिक्विड थर्मोमीटर्स को डिवाइड कर देते हैं 2 अलग ग्रुप्स के अंदर. द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल, द सेकंड वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो हम पहले इनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं और फिर लिक्विड थर्मोमीटर की जो टाइप्स हैं उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग अप, वी हैव आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर. And we have our laboratory thermometer. The point over here is कि अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्योंकि क्लिनिक्स में यूज होता है, so it does not have to have a very wide range. इसने टेम्परेचर मेजर करना है up to 37, 38 और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी रेंज होती है राइट फ्रॉम 35 टू 41 और 42 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें so it goes from 96 till 108. So that is what the range of clinical thermometer is all about. So it is going to have a low range, while if we talk about our laboratory thermometer, तो laboratories में क्योंकि हमने different sort of procedures करने, different sort of experiments करने, तो यहाँ पे हमारी जो range है वो काफी wide हो जाती है, and it is wide because of different set of procedures. कुछ procedures, कुछ reactions काफी cold atmosphere create कर देते हैं, so they need to be like measured with negative temperatures. Then we have some procedures or some experiments जहाँ पे आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, so we need to go around 100 or maybe 120 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी जो रेंज है वो वेरिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज केस. तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं आपके पास उनमें रेंज काफी वाइड हो जाती है. दे हैव अ वेरी वाइड रेंज एंड द रीजन इज नाउ एविडेंट टू यू, क्योंकि हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस कर रहे हैं. वी हैव सम रिएक्शंस एट नेगेटिव टेम्परेचर्स एंड सम रिएक्शंस एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. तो दोनों ही सेट ऑफ रिएक्शंस के लिए हमें एक ही थर्मोमीटर यूज करना है. तो हम
एक वाइड रेंज का थर्मामीटर यूज करते हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड, we need to understand one more thing, that clinical thermometer is very accurate. तो क्लिनिकल थर्मामीटर का एक्यूरेट होना जरूरी क्यों है? The problem is that clinical thermometer is used to diagnose temperature of human beings. और human life बहुत important है. पाकिस्तान में नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज लाइक मेड वेरी सेंसिटिव एंड वेरी एक्यूरेट. इसको एक्यूरेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करना है. सो लाइक इफ द टेम्परेचर इज 98 और क्लिनिकल थर्मामीटर 99 डिग्री शो कर देगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि डॉक्टर ने अब जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है वो 99 के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर देनी है, एंड दैट वुड क्रिएट अ हैवॉक. और जो पेशेंट हैं वो बेचारे अल्लाह ताला के पास जल्दी पहुंच जाएंगे, उनकी फ्लाइट जल्दी टेक ऑफ कर जाएगी. तो हमें ये नहीं होने देना है. So that is why we need to keep the clinical thermometer very accurate. Then coming to laboratory thermometer, आपके पास जो laboratory thermometer होते हैं they have lesser accuracy. और इसका प्रॉब्लम या इसका रीजन ये है that basically if we are dealing with wide range, the accuracy would reduce. ये हमने डिटेल में पढ़ना है when we will be discussing the properties of thermometer. तो वहां पे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें that when we are dealing with range and accuracy, they are inversely related. आप रेंज को बढ़ाओगे अगर तो एक्यूरेसी ने कम हो जाना है. So that's the case. So now moving forward, we have clinical thermometer which is like very accurate, having low range, and it is sensitive as well. तो sensitive होने का मतलब ये है that if we just give it a few seconds of measuring some body temperature, it would be able to gather the results very quickly and very like minimalistically, like बहुत छोटी values को भी ये measure कर पाएगा, which means that it is very sensitive, like बहुत छोटे minute temperature changes को भी ये manage कर पाएगा, उनको measure कर पाएगा और आपको बता देगा कि छोटा छोटा टेम्परेचर का चेंज कंटिन्यूअसली हो रहा है. सो दैट इज व्हाट सेंसिटिविटी इज ऑल अबाउट. कमिंग टू द लेबोरेटरी थर्मामीटर, यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो पुअर हो जाती है कंपेयर टू क्लिनिकल, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में आप लैब्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. सो इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू अ ह्यूमन लाइफ अंटिल आप कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन पे एक्सपेरिमेंट करें जिससे पूरा शहर जो है वो बर्स्ट होने का चांस हो. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू क्लिनिकल. तो यहाँ पे सेंसिटिविटी की भी हमें इतनी जरूरत नहीं होती है. सो इट इज लाइक एवरेज इन सेंसिटिविटी, नॉट दैट वेरी गुड, बट द ओनली पॉइंट इट कंसीडर्स इज कि इसकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए. सो इट इज हैविंग एवरेज सेंसिटिविटी. Now, moving forward, we have our next concept. We are basically done with clinical thermometer and laboratory thermometer differences over here. अब हमने start करना है अपना next concept, which is related to mercury and alcohol thermometers. तो हम start करते हैं अब mercury और alcohol thermometers को. Now, this is very important. Clinical और laboratory से काफी ज़्यादा important है ये topic. और इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो आपने याद रखने, बिकॉज दे कम अप नॉट ओनली इन पेपर 2 बट इन पेपर 1 एज वेल. तो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ पे. सो स्टार्टिंग अप विद मर्करी थर्मोमीटर, क्योंकि मर्करी जो है आपके पास इट इज अ मेटल एंड इट इज पॉइजनस सिंस इट क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ कैंसर फॉर द ब्लड. और इसकी एक खास बात यह है कि अगर आप इसे स्किन पे रखेंगे मर्करी को, इट कैन पियर्स थ्रू योर स्किन इवन विदाउट स्कार्स. आपके अगर स्क्रैच या स्कार नहीं है स्किन पे तब भी मर्करी आपकी स्किन से पियर्स होते हुए आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकता है. सो मर्करी इज वेरी डेंजरस एंड इट इज पॉइजनस एज वेल.
Now coming to alcohol, alcohol is not poisonous and neither dangerous at all. So we can say that it is non-poisonous. तो आपने टेंशन नहीं लेनी है अगर आप अल्कोहल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं. यू शुड बी लाइक हैंडलिंग इट विद कॉशंस. लेकिन मर्करी जितना कॉशियसनेस नहीं चाहिए होता बिकॉज मर्करी इज पॉइजनस कंपेयर टू अल्कोहल विच इज नॉट पॉइजनस एट ऑल. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. अब अगर हम आगे चलें तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी एक डिफरेंस मिलेगा आपको. दैट मर्करी कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. सो इट इज एबल टू मेजर wide range of temperatures. Now coming to alcohol, alcohol is not capable of measuring wide range of temperature. उसका एक ही रीजन है और वो रीजन ये है कि alcohol is basically having a boiling point of 78 degree Celsius. 78 डिग्री सेल्सियस पे इसने बॉयल हो जाना है. तो अल्कोहल ये कहेगा कि भाई आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप करते रहें, मैं चला. तो अब टेम्परेचर कौन मेजर करेगा? अल्कोहल तो नाराज होकर चला गया है. तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अल्कोहल का जो यूज केस है वो काफी कन्फाइंड है, काफी लिमिटेड है. वी कैन नॉट यूज अल्कोहल एट एवरी प्लेस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स. सो इट हैज अ लिमिटेड रेंज due to low melting point and low boiling point. So basically the boiling point is 78 डिग्री सेल्सियस. तो 78 डिग्री पर अल्कोहल ने भाग जाना है और आपका जो थर्मोमीटर है वो अब किसी यूज का नहीं रहेगा. सो दैट इज व्हाई अल्कोहल हैज अ वेरी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ यूज केस. नाउ कमिंग टू मर्करी, मर्करी इज वेरी थिक. इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं. लाइक द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड. तो यहाँ पर मर्करी अगर आप यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में तो आपकी जो बोर है, आपका जो लिक्विड कंटेनर होता है, उसके साथ मर्करी कभी भी स्टिक नहीं करेगा. सो मर्करी डज नॉट स्टिक टू द बोर. Mercury does not stick to the bore. अब ये जो टर्म है बोर, इसका क्या मतलब है ये भी हमें समझना है, लेकिन ये हम आगे समझेंगे जब हमने प्रॉपर्टीज करनी है. तो थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज करते हुए हम बोर को भी समझेंगे दैट व्हाट इज अ बोर एंड व्हाट डज इट लाइक एक्चुअली डू. तो अब आगे चलते हैं. हमारे पास जो अल्कोहल भाई हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं and that is why alcohol can stick to the bore. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने तो समझा दिया कि मर्करी स्टिक्स टू द बोर एंड अल्कोहल डज नॉट स्टिक टू द बोर, लेकिन इसका मतलब क्या है और इससे इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये समझ लेते हैं सर. लेट्स से इफ आई हैव अ थर्मोमीटर ओवर हियर. अपॉलॉजीज फॉर द ड्राइंग. आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी. लाइट वगैरह जलाकर रखें, किसी को अपने साथ बिठा लीजिएगा. ड्राइंग को देखकर डर के भागना नहीं है बिल्कुल भी. तो आ जाते हैं जरा थर्मोमीटर की तरफ. हमारा ये एक थर्मोमीटर है, बहुत ही खतरनाक सा बना हुआ है बेचारा. इसमें आपको एक ट्यूब नजर आ रही है अंदर. लाइक द रेक्टेंगुलर पार्ट इज अ ग्लास कंटेनर एंड द ट्यूब इनसाइड दिस वन इज बेसिकली द बोर. इसे हम कहते हैं बोर. तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हें हमने डिटेल में आगे पढ़ना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा अल्कोहल जगह जगह पे बोर के साथ स्टिक कर जाएगा और लिक्विड कहीं पे फ्लो हुआ है और कहीं फ्लो नहीं हुआ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने टेम्परेचर कौन सा रीड करना है. विल यू रीड दिस टेम्परेचर और दिस वन? तो आप कौन सा टेम्परेचर रीड करोगे? So that is what the problem is all about. अगर ये डिफरेंट पोजीशंस पर स्टिक कर जाएगा ट्यूब पे तो आप टेम्परेचर रीड नहीं कर पाएंगे. Like over here the temperature is 25, over here it's 28 and here it's 40. तो तीन डिफरेंट पोजीशंस पे अल्कोहल चिपका हुआ या स्टिक हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं अल्कोहल की करेक्ट रीडिंग एक्यूरेटली जज नहीं कर सकता. एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. तो अगर आपका लिक्विड
बोर के साथ स्टिक हो रहा है, सो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू रीड द चेंज और रीड द टेम्परेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. So let's come to mercury, which is not sticking at all. तो mercury stick नहीं हो रहा अगर, now you can see that the only marking is over here, which is 25 degrees. तो आप बगैर confusion के, बगैर chaos के अपना temperature directly measure कर सकते हैं और जो भी आपने काम करना है वो फिर आप कर सकते हैं. Like whether you want to take precautions, whether you want to take medicines, इस temperature के हिसाब से आप जो भी task perform करना चाहते थे अब वो आप perform कर सकते हैं with surety that the temperature is 25. Now you don't have any sort of ambiguity with the liquid or the temperature level. So that is what the stick to bore and does not stick to bore means. Now moving forward, we have our next point, which is telling us about the range as well as accuracy. तो अगर हम range की बात करें तो range हमने देखा था कि mercury में ज्यादा है range और अल्कोहल की रेंज रिलेटिवली कम है. तो अब इस तरीके से हम एक और चीज जज कर सकते हैं. मैंने आप लोगों को बताया था दैट एक्यूरेसी एंड रेंज आर इनवर्सली रिलेटेड. ये दोनों इनवर्सली चलते हैं. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेंज, आप वाइड रेंज यूज कर रहे हैं अगर, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो रिड्यूस हो जाएगी. यू वुड हैव लेसर एक्यूरेसी. सो मर्करी इज गोइंग टू हैव less accurate results. While if we talk about alcohol, this is going to have more accurate results. तो ये एक major difference है आपके पास इन दोनों में. Now, if we talk about the sensitivity, like ज़्यादा जल्दी किसने temperature pick करना है, so that is mercury. क्योंकि मरकरी एक मेटल है, इट इज मेटल बाय नेचर. तो मरकरी की जो टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा आपने पढ़ा था कंडक्शन में, कन्वेक्शन और रेडिएशन में, कि सबसे अच्छा जो मेथड है आपके पास फॉर हीट ट्रांसमिशन दैट इज कंडक्शन. कंडक्शन जो है वो सबसे इफेक्टिव होता है, इसमें लॉसेस रिलेटिवली कम होते हैं. तो मरकरी जो है क्योंकि एक मेटल है, सो इट वुड बी ट्रांसमिटिंग द चेंज इन टेम्परेचर बाय कंडक्शन. और यहाँ पर हमारे पास साथ में कन्वेक्शन भी होता है थोड़ा बहुत मरकरी में. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि मरकरी ने अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टीज यूज करते हुए जल्दी टेम्परेचर पिक करना है, एंड दिस मेक्स इट वेरी सेंसिटिव कंपेयर टू अल्कोहल. सो वी कैन से दैट मरकरी इज वेरी सेंसिटिव while alcohol is sensitive, like just sensitive. It is not that much sensitive or it is not having low sensitivity. तो दोनों ही केसेस नहीं है, it is somewhere in between. तो अल्कोहल की सेंसिटिविटी बस नॉर्मल होती है, it is not too good or too poor. Now moving forward, we are done with mercury and alcohol. तो अब next concept की तरफ चलते हैं, and that is related to the properties and components of thermometer. Now this is also very important. आपको काफी क्वेश्चंस नजर आएंगे, तो components of thermometer पहले कर लेते हैं हम. The point here is कि जब भी आप components या properties की बात करेंगे तो इसके काफी क्वेश्चंस आपको MCQs में नजर आएंगे. It majorly comes up in MCQs और ऑलमोस्ट हर साल में आपको एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस नजर आएंगे रिलेटेड टू थर्मोमीटर कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज. तो इन्हें जरा डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग अप विद द कंपोनेंट्स ऑफ थर्मोमीटर, वी हैव अ थर्मोमीटर ओवर हियर. It looks something like this. Over here, this one is your container, like your glass. आपने अगर थर्मामीटर देखा है कभी तो आपको आइडिया रहा होगा कि आप जिस साइड से थर्मामीटर को पकड़ते हैं और जो बाहर गिलास आपको नजर आ रहा होता है,
that is not the actual thermometer, that is just the container or the box of this particular temperature measuring instrument, जिसे आप thermometer कहते हैं. तो वो entirely thermometer नहीं होता है, वो सिर्फ उसका container होता है जिसे आप पकड़ते हैं. The thermometer component which is measuring temperature is inside, जिसे हम bore कहते हैं. Now we have our components over here. जो बाहर आपके पास एक component होता है जिसको आप अपने armpit या टंग के नीचे रखते हैं to measure the temperature. That is your glass bulb. इसे आप कहते हो glass bulb. Now you have got the glass bulb, and ahead of the glass bulb you will have a constriction. Now this is something called constriction. ये एक constriction बनी होती है, और इसको अगर मैं zoom करके दिखाऊं आपको, it would look something like this. Like the bulb is over here, and suddenly there would come up a dip. एकदम से एक dip आएगा और फिर bore आगे की तरफ move करेगी. So this dip over here is constriction. इसे हम कहते हैं constriction. Constriction का purpose क्या है और constriction को हमने क्यों बनाया है ये हम समझ लेते हैं. So over here we have got our constriction. तो constriction को बनाने का जो basic mindset था वो ये था that if you are having a thermometer and you are measuring temperature और thermometer आपके mouth में है and you suddenly watch upwards, आप ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो thermometer ऐसे tilt हो जाएगा and the liquid would come down from the top to the bottom. तो आपका जो thermometer है it would now be something like this. और अब आपने क्योंकि thermometer को ऊपर की तरफ tilt कर दिया है, all the liquid from here would start to move to the bottom, और बल्ब की तरफ वापस से liquid आना शुरू हो जाएगा, which means that the problem would occur in measuring temperature, और आपका जो liquid है वो freely flow back कर जाएगा बल्ब की तरफ. तो हमें इसे flow नहीं करवाना है, we need to stop it. तो हम इसको रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए एक हर्डल लगाते हैं बीच में, एंड दिस हर्डल ओवर हियर इज टर्म्ड एज कॉन्स्ट्रिक्शन. तो इस हर्डल को हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द लास्ट कंपोनेंट ओवर हियर व्हिच इज बोर. तो अंदर एक ट्यूब चलती हुई नजर आ रही है आपको राइट ओवर हियर. दिस ट्यूब इज टर्म्ड एज बोर. इसे हम कहते हैं बोर. Now we'll discuss all of these and we'll have the writings of all of these. एक एक दो दो लाइन हम इन सब components के बारे में लिखेंगे और इन्हें समझेंगे. So starting up with glass container. So the glass container is made thick to act as container and also as a magnifying glass. Now this is a very important point. What you are doing over here is कि आपने glass की जो thickness है इसे काफी ज्यादा कर दिया है. You have made it very thick. जो glass container है इसको आप काफी thick बनाते हैं, और उसका reason ये है that you are making it stronger and you are making it to become a magnifying glass. क्योंकि आपके पास जो temperatures लिखे होते हैं over here, the readings over here are very small. बहुत छोटी readings होती हैं, and a normal eye cannot usually see the markings written. तो हमें इन readings को zoom करना होता है. तो इनको zoom करने के लिए हम लगा देते हैं एक magnifying glass, जिससे आप readings को correctly पढ़ सकते हैं, correctly देख सकते हैं. And one more thing over here is कि इस glass container को thick करने से आप अपने thermometer को, आप अपने instrument को secure कर लेते हैं. So now since the glass container is thick, it would not only secure your thermometer but would also magnify the readings. So that's the concept of glass container. Now moving forward, we have our next component which is glass bulb. तो ग्लास बल्ब का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं.
glass bulb is the container of liquid. जो भी लिक्विड आप यूज करेंगे टू मेजर द टेम्परेचर, उस लिक्विड को आपने कहीं पे सिक्योरली रखना भी है और फिर उसी कंपोनेंट की तरफ आपने हीट सप्लाई करनी है. लाइक इफ यू आर पुटिंग अल्कोहल ओवर हियर, तो आप अल्कोहल को यहाँ पर ग्लास में भर देते हैं. यू फिल इट अप ओवर हियर एंड देन यू वुड सप्लाई हीट फ्रॉम हियर टू द ग्लास बल्ब. आपने हीट सप्लाई करनी है ग्लास बल्ब की तरफ, और उस गिलास बल्ब में आपकी जो हीट है, जो आपका थर्मल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इनटू द अल्कोहल, वो ट्रांसमिशन होता रहेगा और फिर अल्कोहल ने एक्सपेंड करना है. एज यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन वी हीट अप सम लिक्विड्स और ऑल ऑफ द लिक्विड्स, दे आर गोइंग टू एक्सपेंड, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये हमने लास्ट क्लास में कन्वेक्शन में पढ़ा था दैट व्हेनेवर वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी राइज हो जाता है. The same would happen over here, and as soon as you supply heat to the alcohol or the mercury in the glass bulb, so that liquid, that mercury or alcohol would start to expand. वो expand होना शुरू हो जाएंगे और कुछ देर के बाद आपको इस बोर में चलते हुए नजर आएंगे right over here, and you would be able to measure the temperature at that level. फिर आप temperature measure कर पाएंगे. So that's the concept of ग्लास बल्ब एंड बोर. अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पर समझना है, वो ये कि जब भी कभी आप ग्लास बल्ब को बनाते हैं, whenever you manufacture a glass bulb, तो आपने इसे बहुत थिन बनाना होता है. इट इज मेड वेरी थिन. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ग्लास बल्ब को हम थिन इसलिए बनाते हैं बिकॉज इट इज टू ट्रांसफर एनर्जी. इसने क्या करना है? आपके माउथ से एनर्जी को लेना है और अल्कोहल तक पहुंचाना है. सो इट इज लाइक एक्टिंग एज अ मूवमेंट और एज अ ट्रांसफर एजेंट. तो ये एक ट्रांसफर एजेंट है बीच में, एंड इट इज जस्ट कैरिंग एनर्जी फ्रॉम यू एंड गिविंग इट टू द लिक्विड. तो इसने एनर्जी को ट्रांसमिट करना है. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट इफ दिस ग्लास बल्ब वाज थिक, अगर ये हम थिक बना देते तो आपकी जो एनर्जी माउथ से लिक्विड तक जानी थी वो बीच में ग्लास बल्ब में वेस्ट हो जाएगी. So we need to avoid the energy wastage and transmit all the energy from mouth or from supply to the liquid. So that is why we are making the glass bulb very thin. हम glass bulb को thin इसीलिए बनाते हैं ताकि energy wastages ना हो. Now we are going to complete the statement for it. Glass bulb is the container of liquid. It is made thin. Yes, can any one of you tell me why do we keep the glass bulb thin? It is made thin to. Yes, what's the purpose of glass bulb being very thin? हम इसको thin क्यों रखते हैं? To transfer energy and avoid wastage. So it is made thin to transfer energy to the liquid विदाउट वेस्टेज. तो आप एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते by keeping the glass bulb thin. Now there's one more point over here that since we are keeping the glass bulb very thin, हम इसको बहुत thin रख रहे हैं, तो आपकी जो थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है. So the sensitivity would increase. अब ऐसा क्यों हो रहा है? Why is the sensitivity increasing with reduced thickness? अगर आपने ग्लास बल्ब को थिन कर दिया तो आपकी जो एनर्जी वेस्टेजेस थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई हैं, और छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी इस ग्लास बल्ब ने ट्रांसमिट करना है आगे, और आपका जो लिक्विड है वो उस टेम्परेचर को या उस हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड हो जाएगा. सो यू वुड सी अ चेंज इन द लिक्विड. तो आप लिक्विड में फौरन से एक चेंज देख पाएंगे. तो सेंसिटिव हो गया है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ थिन ग्लास. तो आपका जो थर्मोमीटर है उसका थिन ग्लास आपके थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है. सो दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्लास बल्ब. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं.
तो इसकी सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। Constriction is a hurdle in the backflow of liquid from bore to bulb। तो आपने क्या करना है, आपने कॉन्स्ट्रिक्शन बनानी है ताकि लिक्विड जो कि बोर में है वो आराम से या आसानी से बल्ब में ना आ जाए। अब इससे रिलेटेड एक बहुत जो कॉमन सेंस या जनरल नॉलेज की बात है वो ये है कि आपने देखा होगा दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू मेजर टेम्परेचर बाय थर्मोमीटर, तो आप थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ के फ्लिक करते हैं, यू फ्लिक इट अ कपल ऑफ टाइम्स। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? वी डू दिस सो दैट द constriction is letting the liquid from bore to bulb। हम ये चाहते हैं कि फ्लिक करने से आपका सारा लिक्विड बोर से कहाँ पहुंच जाए, बल्ब में पहुंच जाए, इनटू द फ्रंट एंड। और कॉन्स्ट्रिक्शन ने आराम से ये काम नहीं होने देना है, सो वी फोर्स इट टू मूव। तो हम लिक्विड को फोर्स करते हैं टू मूव थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्शन और उसे पुश करके ग्लास बल्ब के अंदर भरते हैं, एंड देन वी मेजर द temperature or heat। So that's the concept of constriction। Now coming to the last component, which is bore। So bore is basically the tube which is like gaining all of the liquid after expansion। तो बोर में ही आपका जो एक्सपेंडेड लिक्विड है वो मूव करता है और बोर पे ही आपकी रीडिंग्स मार्क्ड होती है, like the temperature readings which you see over here are marked on bore। ये सारी रीडिंग्स बोर पे मार्क्ड होती है। सो बोर इज द ट्यूब which receives the expanded liquid from the bulb and has the markings over it, has the markings over it। Now the point here is that whenever you are like measuring temperature, तो आपने हीट देनी है ग्लास को और ग्लास से वो हीट सारी कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी, लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगी, एंड दैट लिक्विड इज गोइंग टू एक्सपेंड एंड इट इज गोइंग टू एक्सपेंड इनटू द बोर। उसने एक्सपेंड होके कहाँ जाना है, बोर की तरफ जाना है। और बोर पे मार्किंग्स होती हैं, रीडिंग्स लिखी होती हैं, जितना भी वो लिक्विड एक्सपेंड करेगा that is going to be the marking or the reading for that temperature। Like if I say that the temperature is to be measured until here, तो इसका बैक स्टोरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली what is happening over here is that your liquid has moved all the way until here, और यहाँ पे आके लिक्विड जो है वो रुक गया है, it has got to a stand still। और यहाँ पे आपको पता चल जाता है फौरन कि आपका जो लिक्विड है वो अब मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है एज पर द हीट सप्लाई। तो जितनी आपने हीट सप्लाई की थी उसके हिसाब से लिक्विड अपनी मैक्सिमम पोजीशन को अचीव कर चुका है, एंड दिस इज वेयर द टेम्परेचर इज गोइंग टू लाई। तो यहाँ से आप फिर टेम्परेचर अपना रीड करते हैं एंड दैट इज योर पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर दैट बॉडी। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर एंड द यूज ऑफ बोर। नाउ वी आर डन विद द कंपोनेंट्स ऑफ थर्मोमीटर। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं दैट whenever you are manufacturing बोर, तो आप बोर को बहुत थिन रखते हैं, it should be kept very thin, so it is kept thin to increase accuracy। अगर आप बोर को थिन कर देंगे तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा और लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो नहीं कर पाएगा, लाइक द पार्टिकल्स एट द साइड्स विल नॉट लाइक स्क्वीज इन एंड मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं होगा। लाइक आपने देखा होगा कि अगर आप गेट ओपन करते हैं
तो ज्यादा लोग अगर आए तो एक साइड से पुश आता है लोगों को, द पब्लिक गेट्स अ साइड पुश, और जो फ्रंट पे खड़े हैं लोग, दे मूव फर्दर अहेड, जहां तक उन्हें पहुंचना था वो उधर से आगे निकल जाते हैं, बिकॉज दे आर पुश्ड अहेड फ्रॉम द साइड्स। तो हम बोर को काफी थिन रखते हैं सो दैट द पार्टिकल्स कुड नॉट बी पुश्ड फ्रॉम द साइड्स, और ऐसा ना हो कि उनको पुश लगे और वो आगे की तरफ लीन कर जाए। So that is why we make sure that the bore is kept thin so that it has a better accuracy. Then the bore can be like kept very long as well. आप bore को long भी कर सकते हैं, lengthy भी कर सकते हैं. So the bore could be very long, which would result in greater range. ये range को बढ़ा देगा आपकी. So longer bore will increase the range. Now the point here is कि बोर की लेंथ से रेंज का क्या ताल्लुक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक फिगर के थ्रू. लाइक आई हैव अ बल्ब ओवर हियर connected with constriction and then a bore. I have a thermometer like the internal component of a thermometer over here, और एक और thermometer है हमारे पास which is having almost the same bulb, same constriction, but this time the bore is very small. Like this is your bore. अब आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि फर्स्ट फिगर में हम ज्यादा मार्किंग्स लिख सकते हैं या सेकंड फिगर में? Which one can have more markings? The first one can have more markings or the second one? Yes, anyone? The first one can have more markings. तो जब मार्किंग ज्यादा लिख पाएंगे आप तो आपकी रेंज भी ज्यादा हो जाएगी. लाइक यू कैन मार्क 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. तो आप 70 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं यहाँ पे. बट ऑन टू दी अदर वन यू हैव 0, 10, 20 एंड 30. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद अ स्मॉलर बोर. आप अगर बोर को लंबा कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, इट वुड डेफिनेटली इंक्रीज द रेंज. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ थर्मोमीटर. तो यहाँ पर हमारे थर्मोमीटर के जो टॉपिक्स हैं कंपोनेंट से रिलेटेड वो कवर हो चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर भी एमसीक्यूज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कभी आपसे प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो आपने उसे रिलेट जरूर करना है विद द कंपोनेंट्स. तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर को रिलेट करते हुए चलेंगे विद द कंपोनेंट्स ऑफ थर्मोमीटर. So let's start with the properties of thermometer. Okay, so the properties of thermometer start with range. Then we have accuracy. Then we have sensitivity. And the last one is linearity. अब आप लोगों ने शुरू के 3 प्रॉपर्टीज पहले ही सुन लिए हैं और काफी हद तक समझ भी लिए हैं. The next one, the last one is linearity, which is new to you people now. और हमने इन सबको ही डिस्कस करना है, लेकिन इनके डिस्कशन से पहले आपसे मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए होगा whether you people are perfectly clear with the components or do you have any sort of query. तो किसी को कोई क्यूरी है with the components? Because we cannot do the components and the like properties in against of one another. अगर आपको component समझ नहीं आए तो properties भी समझ नहीं आएंगी. तो मुझे जरा कंफर्म कर दें. Are you perfectly clear? Okay, so let's start with the properties now. तो properties में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेंज.
as you already know that range is the maximum and minimum measurable temperatures. Like आप maximum कितना measure कर सकते हैं और minimum कितना temperature measure कर सकते हैं, वो temperature की range होगी. So range is the maximum and minimum measurable temperature. Now the point here is कि हम range को किन concepts के through या किन steps के through कम या ज्यादा कर सकते हैं. So range depends upon the liquid type, as we have already discussed कि mercury का boiling point जो है वो काफी ज्यादा है, तो उसकी range भी ज्यादा हो जाएगी. It would be capable to measure wider range of temperatures. In against of it, we have alcohol, which has a low boiling point at 78 degrees Celsius only, so it won't be able to measure wide range of temperatures. तो उसकी range काफी limited हो जाती है. So it depends upon the liquid type and the length of bore. तो अगर आप बोर की लेंथ को ज्यादा कर दें, लाइक यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बोर, तो आपकी रेंज भी ज्यादा हो जाएगी. यू वुड बी एबल टू मेजर वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज इन रिस्पेक्ट टू लिक्विड टाइप एंड बोर. तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज एक्यूरेसी. So accuracy is the ability to measure minimum temperature. तो एक्यूरेसी क्या होता है कि मैं कितना टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ. लाइक कैन आई मेजर 98.1, कैन आई मेजर 98.2. सो दैट इज लाइक फर्स्ट डेसिमल प्लेस. आप 0.1 तक मेजर कर सकते हैं. बट इन केस इफ आई एम एबल टू मेजर 98.11 and 98.12, which means that I am able to measure until 2 decimal places. Like I'll be able to measure until 0.01. 2 decimal places तक मैं measure कर सकता हूँ. So that is my accuracy. Accuracy depends upon the calibration and the range. Okay, so now we have another new term. तो आप लोगों के साथ आज बहुत मजाक हो रहा है. हर 2 मिनट के बाद एक नई टर्म आ जाती है. और अगेन मेरी स्टेटमेंट सेम है कि कैलिब्रेशन को हमने आगे पढ़ना है, तो आप अभी इसको छोड़ दें. सिर्फ इतना समझ लें कि कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रीडिंग्स को मार्क करते हैं थर्मोमीटर पे. तो कैलिब्रेशन जो है वो बेसिकली मार्किंग का प्रोसेस है. अब अगर मैं मार्किंग के दौरान चाहूँ कि मेरे टेम्परेचर्स बहुत माइन्यूट भी मेजर हो जाएं, तो व्हाट विल आई डू? I will mark 97 over here, 98 over here. और अब मैं क्योंकि खुद कैलिब्रेशन कर रहा हूँ, so it's completely on me that do I want to mark at 97.1 or do I want to mark at 97.01. Like अगर मैंने लाइन बिल्कुल करीब मार्क कर दी, so it would be measuring 97.01 as well. So that's completely my choice कि मैंने accuracy कितनी रखनी है during the calibration. The next thing is कि अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर रखना था 0, जो भाई हैं जिन्होंने मुझसे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस खरीदनी है, थर्मोमीटर खरीदना है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे आप एक छोटा सा थर्मोमीटर बना दें जिसमें 0 से 100 तक सब कुछ मेजर हो जाए. तो आई हैव गॉट 0 till 100 ओवर हियर. अब मैंने एक छोटी सी स्पेस में 0 से 100 तक सब रीडिंग्स लिखनी है. So it is practically impossible to write 0.01 over here, then 0.02 over here,
तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे और इतनी छोटी स्पेस पे रीडिंग्स मार्क करेंगे तो आपने मैक्सिमम कितनी रीडिंग्स मार्क करनी है? 5 डिग्री या 6 डिग्री तक मार्क कर पाएंगे आप. यू वोंट बी एबल टू मार्क अंटिल 100. तो जो रेंज है वो भी डिफाइन करती है आपकी एक्यूरेसी को. सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर वाइड रेंज तो आपकी एक्यूरेसी इसीलिए लिमिटेड हो जाती है. I hope this is now perfectly clear since we have been talking about it throughout the class कि range और accuracy inversely related है. तो अब I hope ये clear हो गया होगा आपको point कि range और accuracy क्यों inversely proportional है. तो अगर हमें manufacturer ने 0 से 100 तक का टास्क दिया था to mark और एक छोटी स्पेस दी थी तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं छोटी छोटी रीडिंग्स को वहां पे मार्क कर सकूं. And that is why I am having problem in increasing the accuracy. Accuracy नहीं बढ़ा सकता हूँ अब मैं. तो ये इसका टोटल केस था. अगर मैं चाहूँ कि accuracy को बढ़ाना है तो मुझे रेंज को फिर कम करना होगा. And now if I am trying to measure from 0 till 5 तो अब कोई टेंशन नहीं है. Now since I only need to measure 5 degrees और लेंथ मेरे पास 5 डिग्रीज के हिसाब से काफी है तो अब मैंने छोटी छोटी रीडिंग्स मार्क करके 0.1, 0.02, 0.03 इस तरीके से रीडिंग्स को मार्क करते हुए ऑल द वे 5 डिग्री सेल्सियस तक जाना है. एंड दैट मेक्स अप अ वेरी गुड चांस ऑफ गेनिंग हाई एक्यूरेसी. तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी का विद रिस्पेक्ट टू रेंज एंड कैलिब्रेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी क्या होती है और किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या किन चीजों पर डिपेंड करती है ये हमें समझना है. सेंसिटिविटी इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर that can be measured by thermometer. तो अगर आप बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं किसी थर्मोमीटर को और वो टेम्परेचर मेजर नहीं कर पा रहा, इट इज नॉट एबल टू शो सम चेंज इन द टेम्परेचर, लेकिन वही सेम अमाउंट ऑफ हीट आपने किसी दूसरे थर्मोमीटर को दी और उस थर्मोमीटर ने टेम्परेचर चेंज शो कर दिया, सो दैट प्रूव्स that the second thermometer is more sensitive. It is like sensitive to a small amount of heat, and the first thermometer is not that sensitive towards heat. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है. अब सेंसिटिविटी डिपेंड किन चीजों पे करती है. लाइक अगर मैं चाहता हूं कि मेरा थर्मोमीटर सेंसिटिव हो जाए तो मैंने क्या करना होगा? इट इज डिपेंडेंट on type of liquid. So the first thing over here is कि अगर आपने कोई ऐसा लिक्विड यूज कर लिया जो भाई बेचारे सो रहे हैं, एक ऐसा लिक्विड है जो आराम से सो रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की तरह है, तो उसने तो जागना ही नहीं है. आप जितनी भी हीट दे लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल पिकिंग अप लिक्विड्स. तो आपने कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पिक नहीं करना है और आपने कोई बाहर का लाइक इंटरनेशनल पॉलिटिशियन पिक करना है यहाँ पे. इस तरीके से समझ लें आप. सो द लिक्विड शैल बी वेरी अटेंटिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव. कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो जल्दी से एक्सपेंड कर जाए एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. सो दैट इज द like relation of sensitivity with liquid type. The next thing is that if we want to increase sensitivity or reduce it, we need to change the thickness of bulb. अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था that the glass bulb shall be kept thin. ग्लास बल्ब को हम बहुत थिन रख रहे थे so that a small amount of energies could be transferred as well. तो अब उस कॉन्सेप्ट को हमने सेंसिटिविटी पे इम्प्लाई करना है. So in sensitivity, you are going to keep the bulb very thin so that all the energy, even the smallest amount of energy, could be transmitted perfectly to the liquid. So sensitivity is dependent on type of liquid and the thickness of bulb.
So that's the concept of sensitivity. Now coming to the last one, which is linearity. Linearity is to have equal difference between the readings. तो रीडिंग्स के बीच में इक्वल डिफरेंस को हम लीनियर रीडिंग्स कहते हैं, और ये डिपेंड सिर्फ एक ही चीज पे करता है, एंड दैट इज कैलिब्रेशन. सो इट इज बेस्ड ऑन कैलिब्रेशन, दैट्स इट. कैलिब्रेशन के अलावा किसी और फैक्टर से लीनियरिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. लीनियरिटी को समझ लेते हैं जरा बाय हेल्प ऑफ अ फिगर. So let's say if I have a reading over here as 0, then I kept some space और मैंने reading mark की है अब 10. Then I kept the same difference and marked 20. So this is a linear scale क्योंकि यहाँ पर जो change है, the amount of change is perfectly same. So this is a linear scale. While if we talk about some other scale having equal spacing just like this one, but the readings are haphazard, like the readings are not sequential or are not linear. So you will have 0, then you will have 15, then 20. तो मुंह उठा के कोई भी रीडिंग लिख दें अगर आंख बंद करके, तो उस स्केल को आप नॉन लीनियर कहते हैं, because the readings are now no more in a linear formation. They are not at equal difference. So you were having 0, then you got 15, then you got 20. अब आगे आपने 22 लिख दिया या 50 लिख दिया, तो ये completely non-linear scale कहलाता है. So this is what a non-linear scale looks like. Now the point here is कि linear या non-linear बनाता कौन है? तो वो बनाना मैंने ही है. It's completely my choice when I'm like labeling the scale. तो मैंने स्केल को कैसे लेबल करना है. अगर मैं इसको 0, 10, 20 या इक्वल स्पेसिंग्स पे या इक्वल वैल्यूज पे लेबल कर देता हूं, so I'm making it a linear scale. But in case if I'm angry with the boss, मैं बॉस के साथ एंग्री, तो मैंने कहा कि आज तो मैंने आपकी फैक्ट्री बंद करवा देनी है, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से पेन उठाऊंगा और रीडिंग्स को नॉन लीनियर कर दूंगा. अब जिसने भी टेम्परेचर देखना है उस बेचारे को टेंशन हो जाएगी कि मेरा टेम्परेचर कभी 15 डिग्री बढ़ रहा है, कभी 5 डिग्री इंक्रीज हो रहा है. सो दैट्स व्हाट लीनियर एंड नॉन लीनियर इज ऑल अबाउट. नाउ वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर. अब आपके पास एक टर्म यूज हो रही है बार बार, विच इज कैलिब्रेशन, जो कि आपको डेफिनेटली परेशान कर रही होगी. तो कैलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हमने कवर करना है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कैलिब्रेशन, लेकिन ये हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. तो आज के लिए हम इधर तक ही रखते हैं अपने टॉपिक को, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग मुझे कंफर्म कर दें इफ ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर परफेक्टली क्लियर, और डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी? यस, आमना, उदार, हमशा, all of you? Okay, perfect. So that's it for today. See you then in the next class. Take care everyone. Allah Hafiz.